Hare Krishna, dear devotees, Danvat Pranam, all glories to Srila Prabhupada. Please accept my humble obeisances. I hope you were able to hear the last recording of chapter 7. We were discussing various incarnations and expansions of the Lord. Little difficult topic because the expansions and incarnations are very difficult to understand. But if we understand even just the very basics, I think that will be sufficient for our purpose. Um, the goal is not to understand each and every bit of Krishna completely, which is almost impossible, but just to engage ourselves in trying to learn whatever we can, and it will make it easier to understand certain aspects of Bhagavatam also, where all these technical portions come about expansions and incarnations, and it might become easier to guide other people when we are reading. जैसे नए लोग आते हैं, नए devotees, उनको समझाना थोड़ा आसान हो जाएगा, and at least we will know where to refer to. Even if we don't remember what was written, we will at least remember कि okay, teachings of Lord Chaitanya के कुछ chapters में ये सब describe किया गया है, so we can refer back there. तो ऐसा नहीं है कि हमें सब कुछ ऐसे verbatim याद करना है. It is not like an exam. It is just makes preaching a little bit easier, makes reading of Bhagavatam easier, and whenever there is a doubt or question posed by any other devotee, then we will know where to refer back to. So with that goal in mind, let's again continue our teachings of Lord Chaitanya. And today we will be continuing with chapter 8, the Avtaras or the incarnations, which we discussed a little bit last time also. So we'll be continuing on the same theme. Let me say a quick Manglacharan. ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः. नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमद्भक्तिवेदान्त स्वामीति नामिने. नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद. जय श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे. जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्रा जय गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्णा. So if you remember, right now Lord Chaitanya is teaching Sanatan Goswami. So we'll start reading from chapter 8 titled The Avtaras. Lord Chaitanya continued explaining to Sanatan Goswami about Lord Krishna's avtaras or incarnations, which are his expansions who come to the material creation. The word avatara means one who descends from the spiritual sky. In the spiritual sky, there are innumerable Vaikuntha planets, and from these planets, the expansions of the Supreme Personality of Godhead come into this universe. The first descent of the Supreme Personality of Godhead from the expansion of Sankarsana is the first Purusha incarnation. It is stated in Srimad Bhagavatam 1.3.1 that when the Supreme Personality of Godhead descends as the first Purusha incarnation of the material creation, he immediately manifests 16 elementary energies. Known as Mahavishnu, he lies within the causal ocean, and it is he who is the original incarnation in the material world. Srimad Bhagavatam 2.6.42 states that he is the Lord of time, nature, cause and effect, mind, ego, the five physical elements, the three modes of nature, the senses, and the universal form. He is the independent master of all moving and non-moving living beings in the material world. So, पहले इतना समझते हैं. इसमें लिखा है कि जो अवतार या इनकारनेशंस होती हैं वो स्पिरिचुअल स्काई से डिसेंड होते हैं, ठीक है, इनटू द मटेरियल वर्ल्ड. और इतने इन्यूमरेबल वैकुंठा प्लैनेट्स हैं, वहां से कोई ना कोई एक्सपेंशन नीचे आती है. जो सबसे पहली एक्सपेंशन है इन द मटेरियल वर्ल्ड वो आती है संकर्षण से. इसके लिए लेट मी शो यू अ चार्ट एंड दैट मे हेल्प टू विजुअली अंडरस्टैंड दिस अ लिटिल बेटर. इसमें अगर आपको दिखाई दे रहा है तो प्लीज सी दैट. सो इस चार्ट में अगर आप देखें
ऊपर सारा ये क्या है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड, ये सारा येलो में स्पिरिचुअल वर्ल्ड है ना, नीचे सारा मटेरियल वर्ल्ड है, ठीक है। ये है जैसे ये स्पिरिचुअल वर्ल्ड है येलो वाला, व्हाइट वाला जो ये ब्रह्म ज्योति है, इसके नीचे ये है, इसके नीचे मुझे नहीं पता ये क्या है, ये शायद आउटसाइड ऑफ अ मटेरियल वर्ल्ड जो कार्णोदक्षाय विष्णु लेटे हुए हैं इन द कारणा ओशन, कॉजल ओशन वो है, और इसके नीचे मटेरियल वर्ल्ड है। रिमेंबर कि महाविष्णु इज आउटसाइड ऑफ द मटेरियल क्रिएशन, ठीक है ना, उनकी बॉडी से तो ये सारे यूनिवर्सेस निकल रहे हैं। और ये ऊपर है स्पिरिचुअल स्काई, स्पिरिचुअल स्काई में ये वैकुंठा है जिसमें इन्यूमरेबल वैकुंठा प्लैनेट्स हैं, राइट। और ऊपर सारा गोलोक वृंदावन है, या जैसे कृष्ण लोका भी कहते हैं। कृष्ण लोका के 3 पार्ट्स हैं, द्वारकापुरी, मथुरापुरी एंड गोकुल, या जिसको जो मेन वृंदावन है जहाँ पे राधा कृष्ण रहते हैं, ठीक है। तो द्वारका, मथुरा, गोकुल, और ये नीचे लाइट येलो वाला जो है ये हो गया वैकुंठा प्लैनेट्स। अब हम बात करें यहाँ की, हम बात करें पुरुष अवतार्स की। तो आप देखो ये संकर्षण है, ठीक है। संकर्षण से आते हैं ये फर्स्ट पुरुषा इनकारनेशन विच इज कार्णोदक्षाय विष्णु। ओके, आई एम नॉट गोइंग इनटू द निटी ग्रिटीज ऑफ दिस चार्ट क्योंकि बहुत मुश्किल है इसको समझना। बहुत मोटा मोटा अगर आपको याद रखना है, जितना मैंने याद रखा है वो ये है कि कृष्णा से कुछ स्वयं प्रकाश एक्सपेंशन होती हैं। स्वयं मतलब उनका अपना रूप, अपनी एक्सपेंशन डायरेक्टली, जो बिल्कुल ही सेम रूप में है, सेम मूड में है, वो होती हैं प्रभाव प्रकाश, जैसे कि रासलीला में कृष्णा एक्सपैंड करते हैं या द्वारका में अपनी वाइफ्स के साथ एक्सपैंड करते हैं, बिल्कुल सेम मूड में और सेम फॉर्म में, दिखते भी वैसे ही हैं और मूड भी सेम है, दैट इज प्रभाव प्रकाश। स्वयं प्रकाश की जो दूसरी एक्सपेंशन है वो होती है वैभव प्रकाश, जिसमें मूड भी अलग है, दिखते भी अलग हैं, पर एक्सपेंशन उन्हीं से है, जैसे कि बलराम जी, ठीक है। बाकी सारी अब जो चीजें आ रही हैं वो बलराम जी से आ रही हैं, तो बस कृष्णा से तो बलराम जी आए, उसके बाद सारी चीजें बलराम जी से आ रही हैं। अब बलराम जी से 2 तरह की एक्सपेंशन आती हैं, ठीक है। एक होती है विलास और एक होती है स्वमशा। स्वमशा होती हैं जो मटेरियल वर्ल्ड में होती हैं एक्सपेंशन, विलास हैं जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में है। विलास में जो में आते हैं, अब बिल्कुल मोटा मोटा याद रखना है, जो पहली फर्स्ट चतुर्व्यूह जिसको आदि या फर्स्ट चतुर्व्यूह कहते हैं, राइट, वासुदेव, संकर्षण, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न। और जो सेकेंड, फिर उनसे लॉर्ड नारायण आते हैं संकर्षण से, इस फर्स्ट चतुर्व्यूह के संकर्षण से नारायण, नारायण से द्वितीय चतुर्व्यूह, सेकेंड चतुर्व्यूह, अगेन वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध। फिर इनसे हमने पढ़ा था कि कैसे हर एक से 2-2 विलास मूर्तिज आती हैं, राइट। और ये 3-3 टोटल 12 विष्णु मूर्तिज होती हैं जो हर एक वैकुंठा प्लैनेट को रूल करती हैं, राइट। 12, इफ यू रिमेंबर, 12 तिलक लगाते हैं, 12 महीने होते हैं कैलेंडर के, वो इनके ऊपर नाम होता है उनका। ऐसे करके 12 और ये वाले 8, 20 और ये वाली 4, 24, ऐसे करके 24 मेन डीटीज हैं जो वैकुंठा, इन सारे वैकुंठा प्लैनेट्स में रूल करती हैं, ठीक है। तो ये वैकुंठा प्लैनेट में ये सारे रूल करते हैं, ये सारे जो 24 नाम दिए गए हैं ये, और भी होते हैं पर ये मेन 24 होते हैं। और जो पहला चतुर्व्यूह था वो तो वो वैकुंठा से भी ऊपर है, ठीक है। फिर जो ये वाले संकर्षण थे सेकंड चतुर्व्यूह वाले, इनसे आते हैं आगे एक्सपेंशंस, स्वमशा एक्सपेंशन, जो जिसमें आते हैं पुरुष अवतार्स, राइट। कार्णोदक्षाय विष्णु, गर्भोदक्षाय एंड देन क्षीरोदक्षाय। एंड यू नो कि क्षीरोदक्षाय विष्णु इज द परमात्मा इनसाइड आवर हार्ट, और क्षीरोदक्षाय विष्णु से ही सारे अवतार्स आते हैं, चाहे वो शक्त्यावेश अवतार्स हों, लीला अवतार्स हों, ये लीला अवतार दिख रहा है, ये गुण अवतार दिख रहा है, शक्त्यावेश अवतार दिख रहा है, युगा अवतार, मनवंतर अवतार, लाइक दैट। तो ये बहुत सारे अवतार्स हो गए। सो ये यहाँ पे सबसे पहली अब इनकारनेशन की बताई गई है, जो फर्स्ट एक्सपेंशन थी, देखा ना आपने, फर्स्ट एक्सपेंशन थी संकर्षण से, ये संकर्षण दिख रहे हैं, ये संकर्षण, इनसे फर्स्ट एक्सपेंशन के कार्णोदक्षाय विष्णु। तो कार्णोदक्षाय विष्णु के बारे में बताया गया है कि ही इज द फर्स्ट पुरुष इनकारनेशन जो कॉजल ओशन या कारणा सागर में लाइड आउट करते हैं, और जिनसे सारे यूनिवर्सेस निकलते हैं, जो बेसिकली सोर्स हैं जिनसे सारे मटेरियल एलिमेंट्स आते हैं, सेंस ऑर्गन्स आते हैं, माइंड, इंटेलिजेंस, ईगो आती है, राइट, टाइम पैदा होता है, 3 मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर आते हैं, वो सारे जो एलिमेंट्स हम पढ़ते हैं वो सब इनसे आते हैं, राइट। देन प्रभुपाद हैज कोटेड 2 वर्सेस फ्रॉम भागवतम। तो ये एक वर्स है जिसमें बताया, in the beginning of the creation the Lord first expanded himself in the universal form of Purusha incarnation.
manifested all the ingredients for material creation. And thus at first there was the creation of 16 principles of material action. This was for the purpose of creating material universes. जो फर्स्ट पुरुष अवतार हैं कारणोदक्षाय विष्णु, उनसे इतने सारे मटेरियल एलिमेंट्स वगैरह बने और ताकि मटेरियल क्रिएशन बन पाए. और दूसरा वर्स में लिखा है कि Karnanavashaya Vishnu is the first incarnation of Supreme Lord. He is the master of time, space, cause, effects, mind, elements, ego, modes of nature, senses, universal form, Garbhodakshaya Vishnu, and sum total of all living beings, both moving and non-moving. मतलब उनसे सब चीजें आती हैं. आगे जो मटेरियल चीजें सारी उनसे आती हैं Karnanavashaya Vishnu से. और Karnanavashaya Vishnu आए संकर्षण से. The influence of material nature cannot reach beyond the viraja. Okay. तो ये जो हम देख रहे थे, ये जो सेकेंड लेयर मुझे समझ नहीं आ रही थी, दिस वाज विरज. विरज मतलब कॉजल ओशन. ये कॉजल ओशन या कारण ओशन है. तो मटेरियल क्रिएशन इसके बियॉन्ड नहीं जा सकती. ये बीच में देखा ना, मार्किंग है, डिमार्केशन है. इसके बियॉन्ड मटेरियल वर्ल्ड इसके बियॉन्ड नहीं जा सकता. इस विरज ओशन या कारण ओशन या कॉजल ओशन के बियॉन्ड नहीं जा सकता, एज कन्फर्म्ड इन श्रीमद् भागवतम. Neither the modes of material nature nor time have any influence on the Vaikuntha planets. On those planets, the liberated associates of Krishna live eternally and they are worshipped by both the demigods and demons. ये सारी जो मटेरियल नेचर है, ये जो 3 मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर हैं, टाइम है, मटेरियल एलिमेंट्स हैं, सेंस ऑर्गन्स हैं, ये सारी चीजें विरज या कॉजल ओशन के नीचे नीचे हैं. और ये वैकुंठा प्लैनेट्स में नहीं जा सकती ये चीजें. तो इसलिए वैकुंठा में तो भगवान के नित्य पार्षद रहते हैं और वो उनका इस 3 गुणों से, टाइम से, किसी भी मटेरियल चीज से कोई लेना देना नहीं है. ओके. Okay. Material nature acts in 2 capacities, as Maya and Pradhan. Maya is the direct cause and Pradhan refers to the elements of the material manifestation. When the first Purush avatar, Mahavishnu, glances over the material nature becomes agitated and the Purush avatara impregnates matter with the living entities. Simply by the glance of Mahavishnu, consciousness is created and this consciousness is known as Mahatattva. The predominating deity of the Mahatattva is Vasudev. This created consciousness is then divided into 3 departmental activities according to the 3 gunas or modes of material nature. Okay. तो इसमें क्या बताया गया है कि महाविष्णु जो हैं वो फर्स्ट पुरुष अवतार हैं. वो ग्लांस करते हैं मटेरियल नेचर की तरफ. तो मटेरियल नेचर पहले इनएक्टिव थी. जब वो उसकी तरफ ग्लांस करते हैं तो वो एक्टिवेट हो जाती है, एजिटेट हो जाती है, एक्टिवेट हो जाती है और एक्टिवेट होने से वो बन जाती है महतत्व. इनएक्टिव फॉर्म में थी वो प्रधान, एक्टिव होके वो बन जाती है महतत्व. उस महातत्व में फिर महाविष्णु जीवास डालते हैं, इंप्रेग्नेट करते हैं लिविंग एंटिटीज, राइट. जीवास डालते हैं. तो इस तरीके से उसमें अब कॉन्शियसनेस चली गई. पहले वो सिर्फ मटेरियल एलिमेंट्स थे, कोई उसमें स्पिरिचुअल चीज नहीं थी. अब उन्होंने जीवा डाल दिया तो एक तरह से कॉन्शियसनेस डाल दी, तो वो एक्टिवेट हो गई. और इस महातत्व की प्रिडोमिनेटिंग डीटी है वासुदेव. और इसमें 3 गुणास जो हैं वो एक्ट करते हैं. पहले 3 गुणास पड़े थे पर वो इनएक्टिव थे. ठीक है. जब कॉन्शियसनेस आ गई उसके अंदर तो अब वो 3 गुना एक्टिवेट हो गए एंड दे विल टेक कंट्रोल ऑफ द जीवा, राइट. पहले जब जीवा मटेरियल नेचर के कांटेक्ट में आया तो मटेरियल नेचर एक्टिवेट हो गई और उसमें जो 3 गुना थे उन्होंने जीवा को पकड़ लिया, एक तरह से चेन्स में बांध लिया, राइट. Consciousness in the mode of goodness is described in the 11th canto of Srimad Bhagavatam. The predominating deity of this mode is Aniruddha. तो अगर कोई जीवा या कॉन्शियसनेस मोड ऑफ गुडनेस में है तो प्रिडोमिनेटिंग डीटी होती है मोड ऑफ गुडनेस की अनिरुद्धा. कॉन्शियसनेस इन द मोड ऑफ पैशन प्रोड्यूसेस इंटेलिजेंस. ओके. पैशन में है तो इंटेलिजेंस पैदा होती है. प्रिडोमिनेटिंग डीटी उनकी हो गई प्रद्युम्ना. He is the master of the senses. तो प्रद्युम्ना जो है वो master of the senses हैं और mode of passion के predominating deity हैं. Consciousness in the mode of ignorance causes the production of the sky and the ear. And the cosmic manifestation is a combination of all these modes. And in this way, innumerable universes are created. No one can count the number of universes. तो 3 मोड्स थे वो एक्टिवेट हो गए. उनकी अलग अलग प्रिडोमिनेटिंग डीटी हैं. हर एक से अलग अलग चीज आगे बन रही है. तो
इस तरीके से बहुत सारे यूनिवर्सेस क्रिएट हो गए, ठीक है। And we don't know how many universes are there. There are many innumerable universes in the material creation. These innumerable universes are produced from the pores of Mahavishnu's body. As innumerable atoms pass through the tiny holes in a screen, innumerable universes similarly emanate from the pores of Mahavishnu's body. As he breathes out, innumerable universes are produced, and as he inhales, they are annihilated. All of the energies of Mahavishnu are spiritual. They have nothing to do with the material energy. In the Brahma Samhita 5.48, it is stated that the predominating deity of each universe, Brahma, lives only during one breath of Mahavishnu. Thus, Mahavishnu is the original super soul of all the universes and the master of all universes as well. तो महाविष्णु जो हैं उनकी बॉडी तो कैसे हुआ, महाविष्णु जो थे उनकी उन्होंने ग्लांस किया टुवर्ड्स द मटीरियल, जो मटीरियल क्रिएशन थी प्रधान था, और उसको ग्लांस करके वो एक्टिवेट हो गया, उसमें उन्होंने जीवस इम्प्रेग्नेट किए और वो बन गया महतत्व। महतत्व के अंदर अब कॉन्शियसनेस आ गई, 3 मोड्स एक्टिवेट हो गए, उसमें जीवस उसके अंदर आ गए। और महाविष्णु जो है उनकी बॉडी में से बहुत सारे यूनिवर्सेस निकले, ठीक है, इन्यूमरेबल यूनिवर्सेस निकले उनकी हर एक ब्रेथ के साथ, उनकी बॉडी के पोर्स में से बहुत सारे यूनिवर्सेस निकले और वो इस मटेरियल क्रिएशन में एंटर कर गए, बहुत सारे यूनिवर्सेस निकले। और जब वो उन्होंने एक्सेल किया तो यूनिवर्सेस निकले, इनहेल किया तो वो यूनिवर्सेस वापस उनकी बॉडी में चले गए और एनाइलेट हो गए, ठीक है। और हर एक यूनिवर्स में एक ब्रह्मा जी रूल करते हैं। तो ब्रह्मा जी की जो लाइफ की ड्यूरेशन है वो सिर्फ महाविष्णु की ब्रेथ के बराबर है, बस उनके इनहेल और एक्सेल में जो डिफरेंस है उतनी ही ब्रह्मा जी की लाइफ है। देन न्यू ब्रह्मा जी विल बी प्रोड्यूस्ड विद द नेक्स्ट एक्सेल। तो इस तरीके से एनाइलेशन या महाप्रलय हो जाती है जब उनकी बॉडी, जब उनके महाविष्णु की बॉडी में यूनिवर्स वापस एंटर कर जाते हैं विद द इनहेलेशन। सो इस तरीके से महाविष्णु सोर्स है इन सारे यूनिवर्सेस का। अब ये हो गए फर्स्ट पुरुष अवतार की बात, ठीक है, फर्स्ट विष्णु इनकारनेशन की बात, विच वाज कार्णोदक्षाय विष्णु, ऑल्सो नोन एज महाविष्णु। अब सेकेंड विष्णु इनकारनेशन है गर्भोदक्षाय विष्णु। वो एंटर करते हैं इनटू ईच एंड एवरी यूनिवर्स, spreads perspiration from his body and lies down on that water. From his navel grows the stem of a lotus flower, and on that lotus flower the first creature Brahma is born. Within the stem of that lotus flower are the 14 divisions of the planetary systems, which are created by Brahma. Okay. तो गर्भोदक्षाय विष्णु हो गए सेकेंड पुरुष अवतार, उनकी वो एंटर कर गए हर एक यूनिवर्स में। तो हर एक इतने इन्यूमरेबल यूनिवर्सेस, हर एक यूनिवर्स में गर्भोदक्षाय विष्णु एंटर कर गए। हर एक यूनिवर्स में उनकी बॉडी के से जो पर्सपिरेशन निकली, स्वेट निकला, उसने एक ओशन बना दिया, गर्भोदक ओशन, उसमें गर्भोदक्षाय विष्णु लाई डाउन कर जाते हैं। तो हर एक यूनिवर्स में एक गर्भोदक्षाय विष्णु लाई डाउन करते हैं और उनकी नेवल से एक लोटस फ्लावर निकलता है और उस फ्लावर के ऊपर ब्रह्मा जी बैठे होते हैं, और उस फ्लावर की जो स्टेम निकल रही है उनकी लोटस से, उसमें 14 प्लैनेटरी सिस्टम्स होते हैं, ठीक है। In the form of Garbhodakshaya Vishnu, the Lord maintains each universe and tends to its needs. Although he is within each material universe, the influence of the material energy cannot touch him. When it is required, this very same Vishnu takes the form of Lord Shiva and annihilates the cosmic creation. तो ये हम जब बोलते हैं विष्णु मेंटेनर है, तो वो ये गर्भोदक्षाय विष्णु हो गए जो मेंटेनर हो गए, राइट। वो ये सारे 14 प्लैनेटरी सिस्टम्स को मेंटेन करके रख रहे हैं। और जब टाइम आता है एनाहिलेशन का तो वो शिव जी की तरह एक्ट करते हैं, शिव जी की तरह वो एक्ट करके एनाहिलेट कर देते हैं सब चीज़ों को। और जो हम बोलते हैं ब्रह्मा विष्णु शिवा, दीज आर द प्रिडोमिनेटिंग डीटीज ऑफ द 3 मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर, इसलिए इनको गुणावतार्स बोलते हैं, राइट, क्योंकि ये हर एक मोड की प्राइमरी डीटी है। द मास्टर ऑफ द यूनिवर्स हाउएवर इज गर्भोदक्षाय विष्णु, हु इज वर्शिप्ड एज हिरण्यगर्भा सुपर सोल। द वैदिक हिम्स डिस्क्राइब्ड हिम एज हैविंग thousands of heads. तो ये हो गए सेकेंड पुरुष अवतार गर्भोदक्षाय विष्णु। The third incarnation, Kshirodakshay Vishnu, is the incarnation of the mode of goodness.
He is also the super soul of all living entities. He resides on the ocean of milk within the universe. Thus, Chaitanya Mahaprabhu describes the Purusha avatars. तो क्षीरोदक्षा विष्णु हो गए जो हमारे अंदर परमात्मा है, जो क्षीर सागर में रहते हैं या ओशन ऑफ मिल्क विद इन द यूनिवर्स. ठीक है, ये इन्होंने ऐसे 3 पुरुष अवतारस बताए महाप्रभु ने. लॉर्ड चैतन्य ने नेक्स्ट डिस्क्राइब द लीला अवतारस. तो पुरुष अवतार हो गए, अब हम करते हैं लीला अवतार्स. लीला अवतार्स हमारे लिए आसान है समझना. These are the past time incarnations, and of these the Lord pointed out that there is no limit. लीला अवतार भी बहुत हैं, लेकिन हमें कुछ पता है, एटलीस्ट 10 तो हमें पता है, राइट? मत्स्या, कूर्मा, वराहा, नरसिम्हा, लॉर्ड राम, राइट? परशुराम, ये सब, and then Balram, Krishna, Kalki, right? These are all the Leela avatars. As far as the Guna avatars or qualitative incarnations of Vishnu are concerned, they are 3: Brahma, Vishnu and Shiva. ये भी हमें पता है 3 गुण अवतार्स हैं. They are qualitative incarnations of Vishnu. मतलब कि गुण मतलब कि 3 modes के जो predominant deities हैं, Brahma, Vishnu, Shiva. So Brahma is one of the living entities, right? ब्रह्मा तो जीव है, विष्णु जीव नहीं है. शिवा जो है वो भगवान भी नहीं है लेकिन जीव भी नहीं है. उनकी पोजीशन हायर देन जीवा है, लेकिन नॉट रियली भगवान आइदर, राइट? अभी उनके बारे में आगे पढ़ते हैं. तो ब्रह्मा हो गए लिविंग एंटिटी, बट ड्यू टू हिज डिवोशनल सर्विस ही इज वेरी पावरफुल. दिस प्राइमल लिविंग एंटिटी, मास्टर ऑफ द मोड ऑफ मटीरियल पैशन, is directly empowered by Garbhodaksha Vishnu to create innumerable living organisms. इसीलिए ब्रह्मा जी को कभी, वैसे तो गुण अवतार है, बट शक्त्यावेश अवतार में भी काउंट किया जाता है, क्योंकि उनको शक्ति दी है गर्भोदक्षा विष्णु ने क्रिएट करने की. गर्भोदक्षा विष्णु की नेवल में से निकले ना ब्रह्मा जी, एंड ही क्रिएट्स द 14 प्लैनेटरी सिस्टम्स, और उनको सारे एलिमेंट्स वगैरह दिए गए हैं कि आप बनाओ सारा यूनिवर्स में जो प्लैनेटरी सिस्टम है इनको स्ट्रक्चर करो. तो वो ब्रह्मा जी काम करते हैं क्रिएशन का. क्रिएशन करने के लिए मोड ऑफ पैशन की जरूरत होती है, तो ब्रह्मा जी मोड ऑफ पैशन को यूज करते हैं क्रिएशन करने के लिए. ऐसा नहीं कि ही इज इन मोड ऑफ पैशन, ही इज यूजिंग द मोड ऑफ पैशन टू डू द क्रिएशन. सो इन दिस वे ही इज मास्टर ऑफ द मोड ऑफ पैशन. ठीक है, तो उनको गुणावतार में भी काउंट किया जाता है, शाक्त्यावेश अवतार में भी. और वैसे वो जीवा हैं, लेकिन वो एक बहुत एम्पावर्ड जीवा हैं. ठीक है, इन ब्रह्मा संहिता, ब्रह्मा इज लाइकन टू अ वैल्यूएबल jewel influenced by the rays of the sun, and the supreme lord Garbhodaksha Vishnu is likened to the sun. If in some kalpa there is no suitable living entity who can act in Brahma's capacity, Garbhodaksha Vishnu himself becomes Brahma and acts accordingly. तो जो एक बहुत ही सुपीरियर टाइप का जीवा होता है जिसमें सारी क्वालिटीज जो जीवा में पॉसिबल हैं, राइट, 50 क्वालिटीज, वो ब्रह्मा जी में होती हैं. उस जीवा को ब्रह्मा की पोजीशन दी जाती है, और वो एम्पावर्ड होता है बाय गर्भोदक्षा विष्णु टू कॉज क्रिएशन बाय यूजिंग मोड ऑफ पैशन. ठीक है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई सुटेबल जीवा हो ही ना ब्रह्मा बनने के लिए, तब गर्भोदक्षा विष्णु खुद ही ब्रह्मा बन के आते हैं और ये सारा काम खुद ही करते हैं. फिर ये हो गया ब्रह्मा जी के बारे में. फिर है शिव जी. Similarly, by expanding himself as Lord Shiva, the Supreme Lord is engaged when there is need to annihilate the universe. Lord Shiva, in association with Maya, has many forms, which are generally numbered at 11. Okay. तो जो लॉर्ड शिवा है उनकी पोजीशन जीवा से सुपीरियर है. ब्रह्मा जी तो टॉप मोस्ट जीवा हैं, लेकिन शिव जी उनसे थोड़ी और सुपीरियर पोजीशन है. कैसे? ऐसा बोलते हैं कि जो महाविष्णु की ग्लांस होती है ना, जो मटेरियल नेचर पे पड़ती है, एक्टिवेट करती है मटेरियल नेचर को, उस ग्लांस को बोलते हैं, वो ग्लांस क्या है? वो ग्लांस शिव जी हैं. ठीक है, वो ग्लांस जो नजर है वो शिव जी हैं. वो जब माया के ऊपर पड़ती है, माया इज बेसिकली प्रकृति, इज बेसिकली पार्वती, मदर पार्वती. जब शिव जी का मदर पार्वती से मिलन होगा, राइट, ग्लांस जो है वो मटेरियल नेचर पे पड़ेगी, तो मटेरियल नेचर एक्टिवेट होती है, राइट. और वो ग्लांस को बोलते हैं काल शक्ति, ऑल्सो टाइम फैक्टर. तो इस तरीके से लॉर्ड शिवा के काफी सुपीरियर पोजीशन है, क्योंकि ही इज द टाइम फैक्टर या काल शक्ति. ठीक है, जो मदर नेचर को एक्टिवेट करती है, और जिसकी वजह से जीवास इम्प्रेग्नेट होते हैं इनटू द material nature, and they come under the influence of time and come under the influence of the gunas, right. वो लॉर्ड शिवा हैं.
और लॉर्ड शिवा का दूसरा काम क्या है कि ही हैज बीन गिवन द टास्क ऑफ एनहाइलेशन ऑफ द यूनिवर्स ऑल्सो। तो एनहाइलेशन का जो काम है वो एक तरह से इग्नोरेंस वाला काम है। सो ही इज द मास्टर ऑफ मोड ऑफ इग्नोरेंस। ऐसा नहीं कि वो इग्नोरेंस में है, उनका जो काम दिया गया है, जैसे कि ब्रह्मा जी का काम मोड ऑफ पैशन में था, ऐसे शिव जी का काम एनहाइलेशन का है, इसीलिए मोड ऑफ इग्नोरेंस में है। और आगे बताया गया कि शिवा जो है उनकी बहुत सारी फॉर्म्स होती हैं, जैसे हम कहते हैं कि रुद्रास होते हैं। तो इस तरह से 11 रुद्रास हैं, 11 रुद्रास होते हैं। ओके। लॉर्ड शिवा इज नॉट वन ऑफ द लिविंग एंटिटीज। जैसे ब्रह्मा जी तो लिविंग एंटिटी है ना, लॉर्ड शिवा इज नॉट वन ऑफ द लिविंग एंटिटीज। ही इज मोर और लेस कृष्णा हिमसेल्फ, राइट? क्योंकि जैसे उनकी ग्लांस हैं, सोचो वो, तो कृष्णा की ही एक तरह की एक्सपेंशन है। और इसके बारे में ब्रह्म संहिता में एक एग्जाम्पल आता है, एनालॉजी आती है। एग्जाम्पल ऑफ मिल्क एंड योगर्ट इज ऑफन गिवन इन दिस रिगार्ड। Yogurt is a preparation of milk only, but still yogurt cannot be used as milk, right? योगर्ट क्या है, वो मिल्क से ही बना है, लेकिन वो मिल्क को जैसे फाड़ के योगर्ट बनता है, राइट? मिल्क की एक तरह की डिस्टॉर्टेड वर्जन योगर्ट है। इसी तरीके से अगर कृष्णा मिल्क है तो शिवजी योगर्ट है, मतलब बने कृष्णा से ही हैं, लेकिन उनकी ही एक्सपेंशन है। बट वो काम नहीं कर सकते जो कृष्णा कर सकते हैं, ठीक है? जैसे योगर्ट वो काम नहीं कर सकता जो मिल्क कर सकता है। So Lord Shiva is an expansion of Krishna, but he cannot act like Krishna, nor can we derive the spiritual restoration from Lord Shiva that we derive from Krishna. The essential difference is that Lord Shiva has a connection with material nature, but Vishnu or Lord Krishna has nothing to do with material nature. तो शिवा को तो मिंगल होना पड़ता है माया के साथ, राइट? वो तो मिंगल होते हैं, माया के साथ एसोसिएट करते हैं, लेकिन कृष्णा या विष्णु माया के साथ मिंगल नहीं करते, उससे अलूफ रहते हैं। जैसे कि इवन परमात्मा जो शिरोदक्षा एक्सपेंशन है वो बिल्कुल अलूफ रहती है जीवा से, या जो गर्भोदक्षा विष्णु है वो हर एक यूनिवर्स में उन्होंने ब्रह्मा जी को काम दे दिया, खुद बिल्कुल अलूफ है। महाविष्णु, उनसे सारे यूनिवर्सेस निकल रहे हैं, लेकिन वो खुद बिल्कुल अलूफ है। तो विष्णु या कृष्णा बिल्कुल अलूफ रहते हैं फ्रॉम मटेरियल क्रिएशन से, एसोसिएट नहीं करते, लेकिन शिव जी हैज टू एसोसिएट विद द माया to perform this task of annihilation. In Srimad Bhagavatam, it is stated that Lord Shiva is a combination of three kinds of transformed consciousness known as Vaikarika, Tejasa and Tamasa. तीन तरह के कॉम्बिनेशन के तीन तरह की कॉन्शियसनेस के कॉम्बिनेशन है। तो ये तो आई थिंक भागवतम में बताया गया, तो विल जस्ट रीड देयर जब टाइम आएगा। तो बेसिकली हमें पोजीशन क्लियर हो गई कि ब्रह्मा जी की क्या पोजीशन है। उनके पास पैशन वाला काम है, वो गर्भोदक्षय विष्णु से पैदा हुए हैं, वो उस यूनिवर्स के लिए अथॉरिटी हैं, वो मास्टर ऑफ मोड ऑफ पैशन, और वो बहुत ही टॉप मोस्ट जीवा हैं। और जब कोई जीवा क्वालिफाई नहीं करता ब्रह्मा बनने के लिए, तो कई बार गर्भोदक्षय विष्णु खुद ब्रह्मा बन के आते हैं। विष्णु की पोजीशन हो गई कि विष्णु जो है वो एक्सपेंशन है संकर्षण से। तीन तरह के पुरुष अवतार में आते हैं वो। सबसे पहले है महाविष्णु या कारणोदक्षय विष्णु, फिर है गर्भोदक्षय, फिर है क्षीरोदक्षय। इन सबसे मटेरियल क्रिएशन बन रही है, यूनिवर्सेस बन रहे हैं, ब्रह्मा जी बन रहे हैं, और ये एंटर भी करते हैं इनटू ईच यूनिवर्स, लेकिन उससे डिसोसिएटेड रहते हैं, पर मेंटेन करके रखते हैं उसको थ्रू देयर एनर्जीज। तो वो हो गए मोड ऑफ गुडनेस में। और तीसरे हो गए शिव जी, जो ना तो जीवा हैं ना भगवान हैं, उनसे बीच की पोजीशन है उनकी, और वो माया के साथ एसोसिएट करते हैं, और वो एनाइलेशन का काम करते हैं, और मोड ऑफ इग्नोरेंस के मास्टर हैं मेनली। The Vishnu incarnation, although master of the modes of goodness within each universe, is in no way in touch with the influence of the material nature. Although Vishnu is equal to Krishna, Krishna is the original source. Vishnu is a part, but Krishna is the whole. This is the verdict of the Vedic literature. Brahma Samhita gives the example of an original candle which lights a second candle. Although the candles are of equal power, one is still accepted as the original, and the other is said to be kindled from the original. The Vishnu expansion is like the second candle. He is as powerful as Krishna, but the original Vishnu is Krishna. Brahma and Lord Shiva are obedient servants of the Supreme Lord, and the Supreme Lord as Vishnu is an expansion of Krishna.
यहाँ बताया गया है कि विष्णु जो है वो मोड ऑफ गुडनेस में है, वो हर एक यूनिवर्स में है, वो सारा मटेरियल क्रिएशन का काम कर रहे हैं लेकिन नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय द मटेरियल नेचर। और विष्णु और कृष्ण इक्वल हैं, कृष्णा से ही आए हैं विष्णु, लेकिन कृष्णा ओरिजिनल सोर्स हैं और विष्णु उनसे आगे, उनसे एक्सपैंड होके आए हैं। जैसे कि एक प्राइमरी कैंडल है, उससे बाकी की कैंडल्स चली हैं, लेकिन एक प्राइमरी कैंडल है, वो कृष्णा है। तो उनकी पावर सेम हो सकती है लेकिन उनका मूड एकदम अलग अलग है। और उनका एक तरह से काम भी अलग है। अम, और जो ये सुप्रीम लॉर्ड है ब्रह्मा और विष्णु उनके ब्रह्मा एंड शिवा उनके सर्वेंट्स हैं। आफ्टर डिस्क्राइबिंग द लीला एंड द गुण अवतार्स, तो अब हमने कर लिए, पहले हमने पढ़े पुरुष अवतार्स, फिर हमने पढ़े गुण अवतार्स, अब हमने पढ़े लीला, फिर हमने पढ़े लीला अवतार्स। अब ये एक्सप्लेन हो गए। उसके बाद लॉर्ड चैतन्य एक्सप्लेन द मनवंतर अवतार्स, इनकारनेशन एसोसिएटेड विद द मनूस। तो इसका बहुत ही मोटा मोटा मैथ्स अगर हम समझ लें, देन वी डोंट नीड टू लर्न टू मेनी नंबर्स। सिंपल सी बात ऐसे है कि जो हमारा जैसे एक चतुर्व्यूह होता है, चतुर्युगा होता है। चतुर्युगा क्या होता है? 4 युगास का साइकिल, राइट? सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग का एक साइकिल को चतुर्युगा कहते हैं। ऐसे 1000 चतुर्युगास आते हैं 1 कल्पा में, ठीक है? 1 कल्पा इज इक्वल टू 1 डे ऑफ ब्रह्मा जी, जो डे होता है ब्रह्मा जी का। तो एक डे ऑफ ब्रह्मा जी में, इसका मतलब 1000, 1 डे ऑफ ब्रह्मा इज इक्वल टू 1 कल्पा विच इज इक्वल टू 1000 चतुर्युगा। इतना तो समझ आ गया, सिंपल है। अब उस एक डे ऑफ ब्रह्मा में या एक कल्पा में कितने मनवंतर्स होते हैं? 14 मनवंतर्स। 14 का मतलब 14 मनुज आएंगे जो रूल करेंगे, ठीक है? 14 मनुज आते हैं और हर एक मनवंतर में कुछ एक मनवंतर अवतार आएगा, एक मनवंतर इनकारनेशन आएगी। तो इसका मतलब एक डे ऑफ ब्रह्मा जी में कितने मनवंतर अवतार आए? 14, बिकॉज 14 मनवंतर्स है ना, तो 14 मनवंतर अवतार आए। ये तो सिर्फ एक डे ऑफ ब्रह्मा जी में। इस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं एक साल में कितने आएंगे। और ब्रह्मा जी की ड्यूरेशन होती है 100 ईयर्स की, तो 100 साल में कितने मनवंतर अवतार आएंगे? तो उतने मनवंतर अवतार आते हैं इन द लाइफ टाइम ऑफ अ ब्रह्मा जी। ये होगी इसकी मैथ्स, यही इसमें बताई गई है। क्या? he first stated that there is no possibility of counting the manvantar avatars, right? So many there. 14 manus appear in one kalpa or day of brahma, and for each manu there is a manvantar avatar. It is calculated that each day of brahma lasts, ये इतने जो भी अर्थ ईयर्स लिखा है, इतना 4320 मिलियन अर्थ ईयर्स ब्रह्मा जी का एक डे होता है। मतलब दिस इज इक्वल टू 1000 चतुर्युगास या 1 कल्पा, राइट? एंड ब्रह्मा लिव्स फॉर 100 ईयर्स। तो इस तरीके से आप कैलकुलेशंस कर लो कि अगर एक दिन में 14 मनु आए तो 420 मनुज आए इन 1 मंथ। हाँ, उसको 30 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 420 मनुज आए इन 1 मंथ, और फिर 12 से मल्टीप्लाई कर दिया तो आ गया 5040 मनुज। ये आए इन 1 ईयर ऑफ ब्रह्मा। अब 100 ईयर्स होते हैं तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो गया इतने मनुज आए, 504,000 मनुज आए इन 1 लाइफ टाइम ऑफ 1 ब्रह्मा, ठीक है? Since there are innumerable universes, no one can imagine the totality of the मनवंतर incarnations. तो जितने मनु आए उतनी ही मनवंतर इनकारनेशंस आई। अब क्योंकि इतने यूनिवर्सेस हैं, हर एक यूनिवर्स में एक ब्रह्मा जी हैं, तो कितने ही मनवंतर अवतार आ रहे हैं एक टाइम पे, तो कोई गिनती ही नहीं कर सकते कि कितने मनवंतर अवतार हैं, ठीक है? Countless universes are produced by the exhalation of Mahavishnu, and thus no one can begin to calculate how many Manus are existing at one time. तो बहुत Manus हैं and बहुत मनवंतर अवतार हैं। तो हमें इतना ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं। हम मेन मनूस के टाइम पे जो मनवंतर अवतार आए उनको ही थोड़ा याद कर सकते हैं, वो यहाँ पे बताए गए हैं। जो मेन बताए गए हैं उसमें से भी हमको सिर्फ 2-3 भी याद हो जाएं, दैट इज इनफ। ईच मनु इज नोन बाय डिफरेंट नेम, ठीक है? अब हम बात करते हैं लेट्स से अपने चतुर्व्यूह, अपने कल्पा की, इस डे ऑफ, अभी डे चल रहा है ब्रह्मा जी का जिसमें हम बैठे हैं, इस डे की बात करते हैं, ठीक है? इस डे में जो फर्स्ट मनु थे वो थे स्वयंभू मनु, ठीक है? ही इज अ डायरेक्ट सन ऑफ ब्रह्मा जी। सेकेंड मनु was Swaruchisha, the son of the predominating deity of fire.
थर्ड मनु उत्तम, फोर्थ मनु तामसा, फिफ्थ मनु रायवता, सिक्स्थ मनु चक्षुषा। अब आओ सेवंथ मनु पे, क्योंकि दिस कंसर्न्स अस, क्योंकि ये हमारा अभी वाला जो टाइम चल रहा है उसके मनु हैं ये। विवस्वता, ही इज द सन ऑफ सन गॉड, तो अभी उनका टाइम चल रहा है। अभी जो सन गॉड है उनका नाम है विवस्वान, और जो उनके बेटे हैं वो अभी करंट मनु है, वैवस्वता। ठीक है, फिर आगे जो आएंगे वो है एट्थ मनु, वो भी सन ऑफ सन गॉड ही है। नाइन्थ मनु, टेंथ मनु, इस तरीके से आएंगे। और भी उसके अलावा 11, 12, 13, 14 भी दिए गए हैं सारे। तो हमारे टाइम पे तो जो सबसे पहले आए थे मनु, फर्स्ट मनु थे स्वयंभू मनु, एक ये नाम याद रख लो। एक हमारे टाइम के जो है सेवंथ मनु विवस्वता मनु, ये याद रख लो। फर्स्ट मनु के टाइम पे जो मनवंतर इनकारनेशन आई थी वो थी सुयज्ञा या यजना या सुयजना नाम था उनका। वो उस टाइम इंद्रदेव भी वही थे, वही मनवंतर इनकारनेशन इंद्रदेव भी थी। इस सेवेंथ मनु के टाइम पे जो मनवंतर इनकारनेशन आई थी वो थे वामन देव। वो लीला अवतार में भी है, मनवंतर इनकारनेशन में भी है। ठीक है, लाइक दैट। तो ये बहुत हो गई, बहुत सारी मनवंतर इनकारनेशन है। हर एक मनु के टाइम पे एक अलग मनवंतर इनकारनेशन आएगी। नो काउंट, नो वे टू कीप काउंट। After describing the Manu incarnations, Lord Chaitanya described the Yuga Avtaras. अब युगा अवतारा थोड़ा हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो हमें बताते हैं कि वो युग धर्मा सेट करते हैं, उस पर्टिकुलर युगा का युग धर्मा सेट करते हैं वो। सो 4 युगास हुए, चतुर्युगा, राइट, और मिलेनियम्स बोलते हैं हम इसको, सत्य, त्रेता, द्वापर एंड कली युग। एंड इन ईच मिलेनियम सुप्रीम लॉर्ड अपीयर्स इन एन इनकारनेशन ऑफ डिफरेंट कलर। हर एक युगा में, जैसे सत्ययुग में डिफरेंट कलर, त्रेता में डिफरेंट, लाइक दैट डिफरेंट कलर के आएंगे। तो सत्ययुग में जो युगा अवतार आए थे उनका व्हाइट कलर था, प्रिंसिपल इनकारनेशन हैड व्हाइट कलर। त्रेता युग में जो आए थे उनका रेड कलर था। द्वापर युग में जो आए थे कृष्णा, उनका ब्लैकिश कलर था। और कल युगा में जो आए थे उनका गोल्डन येलो कंप्लेक्शन था, दैट वाज लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु। ओके, ये सब दिया गया श्रीमद् भागवतम में, किसने? गर्ग मुनि ने। सो वी कैन लुक एट दिस वर्ड्स वेरी क्विक। गर्ग मुनि ने बताया है। गर्ग मुनि ने किसको बता रहे हैं? नंद महाराज को, कि योर सन कृष्णा अपीयर्स इन इनकारनेशन एवरी मिलेनियम। 3 डिफरेंट कलर्स में आए थे, व्हाइट, रेड एंड येलो, और अभी आए हैं ब्लैक कलर में। और किसी और द्वापर युग में वो आए थे एज लॉर्ड रामचंद्र इन द कलर ऑफ शुका और पैरेट। लाइक लॉर्ड रामचंद्र का ग्रीनिश कलर होता है ना, तो लॉर्ड रामचंद्र पहले कभी द्वापर युग में भी आए हुए हैं इन द ग्रीनिश कलर, एंड अभी आए हैं कृष्णा की फॉर्म में, हु इज द ओरिजिनल पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड। तो ये गर्ग मुनि ने बताया था व्हेन ही वाज कैलकुलेटिंग कृष्णाज हॉरोस्कोप इन द हाउस ऑफ नंद महाराज। जब वो उनका हॉरोस्कोप देख रहे थे कृष्णा बलराम का और उनको नाम दिया था उन्होंने, उस टाइम पे ये बात बताई थी कि किस तरह से हर मिलेनियम में, हर युगा में डिफरेंट कलर में ये आते हैं सुप्रीम लॉर्ड, और डिफरेंट पर्पस के लिए। और अभी आए हैं कृष्णा की फॉर्म में, ब्लैकिश कलर में। फिर वो क्या युग धर्म एस्टैब्लिश करते हैं सत्ययुग में? तो जो प्रोसेस था ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन, दैट वाज मेडिटेशन, वी नो दैट, राइट? दैट वाज मेडिटेशन, एंड दिस प्रोसेस वाज taught by the white incarnation of the god, जो सफेद रंग के थे, white incarnation. This incarnation gives a benediction to sage Kardam. उन्होंने करदम मुनि को benediction दी थी, by which he obtained an incarnation of the personality of Godhead as his son. Right? करदम मुनि ने अपनी वाइफ देवाहुति के साथ ही begot Lord as his son, and that was Kapila Muni, sage Kapila, right? तो ये किसने दी थी ये benediction? सेज करदम को, करदम मुनि को, जो white incarnation थी God की in the Satyayug. In the Satyayug, everyone meditated on Krishna and each and every living entity was in full knowledge. In the present age, the Kali Yuga, people who are not in full knowledge are still attempting various meditative processes not recommended for this age. तो सतयुग में meditation था process for self realization, for attaining perfection of life and भगवत प्राप्ति के लिए। और उस टाइम पे सारे लोग फुल नॉलेज में होते थे, तो उस टाइम पे they had this much intelligence and mindset and focus and concentration and austerity in them, purity in them, कि वो लोग बैठ के इतने लंबे टाइम तक मेडिटेशन कर सकते थे, thousands of years तक बैठ के मेडिटेशन करते थे।
Kali-yuga में we don't have that much focus or buddhi or concentration or austerity or purity in us to do all this. We have very limited knowledge and very difficult to do this process of meditation. लेकिन अभी भी कुछ लोग meditative process ही follow करते हैं which is not recommended for this age. फिर त्रेता युग में जो प्रोसेस था सेल्फ रियलाइजेशन का वो था फायर सैक्रिफाइस करने से करते थे सेल्फ रियलाइजेशन. दिस वाज टॉट बाय द रेड इनकार्नेशन ऑफ गॉड. द्वापर युग में कृष्णा खुद आए थे और उन्होंने कौन सा प्रोसेस दिया था? दैट वाज वर्शिपिंग हिम by deity worship. ठीक है ना? He was blackish in color. He was the incarnation of the supreme personality of Godhead himself, and he induced people to worship him, as stated in Bhagavad Gita. Srimad Bhagavatam states that in the Dwapar millennium, people generally worshipped the Supreme Lord by chanting the following hymn. तो क्या 11th कैंटो में दिया गया है कि कृष्णा की वर्शिप कृष्णा ने एस्टैब्लिश की कि मेरी वर्शिप करो, पर वो कैसे करते थे? ये हिम चैंट करते थे. नमस्ते वासुदेवाय नमः संकर्षणाय प्रद्युम्नानिरुद्धाय तुभ्यं भगवते नमः. Let me offer my obeisances unto the Supreme Personality of Godhead in the forms of Vasudev, Sankarshan, Pradyumna and Aniruddha. Okay. फिर आया कलयुगा. कलयुगा में लॉर्ड हैं येलो कलर के और उन्होंने क्या प्रोसेस दिया? ऑफ अटेनिंग द लव ऑफ गॉड बाय चैंटिंग द नेम्स ऑफ कृष्णा. तो उन्होंने जपा यज्ञ या संकीर्तन यज्ञ का प्रोसेस दिया इन द फॉर्म ऑफ चैतन्य महाप्रभु. He exhibits love of Godhead by chanting, singing, dancing with thousands of people following him. This particular incarnation was also foretold in Srimad Bhagavatam 11th canto. 11.5.32 भागवतम में बताया गया कृष्ण वर्णम त्रिसा कृष्णम सांगोपांगा अस्त्र पार्षदम यज्ञे संकीर्तना प्राये यजंती ही सुमेधशा. ये जो कली में लॉर्ड आएंगे एज अ डिवोटी जो हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे हरे ये चैंट करेंगे with his parshads and associates. And although he is Krishna himself, but he is not blackish in color. He is golden in color, and he will engage people in chanting of the Lord's name through the Sankirtan movement. And those who are intelligent will adopt this process of self-realization. Also, 12th canto में बताया उन्होंने कि कृते यध्यायतो विष्णुं त्रेतायां यजतो मखे द्वापरे परिचर्यायां कलाओ तदहरि कीर्तनात्. वही प्रोसेस बताया कि द self-realization achieved in Satya Yuga by meditation, Treta by performance of sacrifices, Dwapar Yuga by worship of Lord Krishna can be achieved in the age of Kali by chanting the holy name of Hare Krishna. और विष्णु पुराण में भी यही बात दी गई है. ध्यायन कृते यजन यज्ञे त्रेतायां द्वापरे अर्चयन यद आपनोति तद आपनोति कलाओ संकीर्त्य केशवम. कि in this age there is no use for meditation, performance of sacrifices or temple worship. Simply by chanting the holy names of Krishna, one can achieve the perfect self-realization. तो कलयुगा में ये बहुत ही ग्रेट बेनेडिक्शन है कि हम बस चैंटिंग करने से ही सेल्फ रियलाइजेशन अटेन कर सकते हैं. When Lord Chaitanya described the incarnations for this age of Kali, Sanatan Goswami, who had been a government minister and was perfectly capable of drawing conclusions, asked the Lord, how can one understand the advent of an incarnation? From the description of the incarnation for the Kali millennium, Sanatan Goswami could understand that Lord Chaitanya himself was that incarnation of Krishna, and he could also understand that in the future many people would try to imitate Lord Chaitanya, because the Lord had played as an ordinary Brahman through his devotees, though his devotees accepted him as an incarnation. Since Sanatan knew that there would be many pretenders, he asked the Lord, how can one understand the symptoms of an incarnation? तो चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी को सारे अवतार के बारे में बता रहे हैं. और जब उन्होंने कलयुगा के अवतार के बारे में सुना तो सनातन गोस्वामी बहुत इंटेलिजेंट हैं, एक बहुत ही इन्फ्लुएंशियल पोस्ट पे रह चुके हैं एज अ प्राइम मिनिस्टर टू द गवर्नमेंट इन द स्टेट ऑफ बंगाल. तो उनको ये क्वेश्चन आया कि आप बता रहे हो इतने सारे इनकारनेशंस के बारे में, तो हम कैसे बता सकते हैं कि कोई इनकारनेशन है? इनकारनेशन के सिम्टम्स क्या होते हैं, उसका बिहेवियर क्या होता है? क्योंकि उनको पता था कि ये महाप्रभु ही इनकारनेशन है,
तो महाप्रभु को हम इनकारनेशन मानते हैं क्योंकि हम उनके पार्षद हैं, उनके डिसाइपल्स हैं, उनके एसोसिएट्स हैं, डिवोटीज हैं। लेकिन वो एक ऑर्डिनरी ब्राह्मण की तरह रह रहे हैं, सन्यासी की तरह रह रहे हैं। तो बाकी लोग उनको कैसे इनकारनेशन मानेंगे और बाकी लोग भी प्रिटेंड करेंगे कि हम भी इनकारनेशन हैं। तो कैसे हम ट्रूली डिटेक्ट कर सकते हैं कि ये कोई ट्रू इनकारनेशन है वर्सेस कोई फेक या इमिटेशन है। तो उन्होंने इंटेलिजेंट क्वेश्चन पूछा महाप्रभु से। तो महाप्रभु क्या बता रहे हैं? As one can understand the different incarnations for previous millenniums by referring to Vedic literature, the Lord replied, one can similarly understand who is actually the incarnation of Godhead in this age of Kali. कि जैसे पिछले युगाज में हमें कैसे पता चला था कि कोई इनकारनेशन है ना, बाय रेफरिंग टू वैदिक लिटरेचर। इसी तरीके से कलयुग में भी आप कैसे पता चलेगा, आप वैदिक लिटरेचर को ही रेफर करोगे टू नो वेदर somebody is an actual incarnation of Lord or not. In this way, the Lord especially stressed reference to authoritative scriptures. In other words, one should not whimsically accept a person as an incarnation, but should try to understand the characteristics of an incarnation by referring to the scriptures. कि scriptures में जाके अगर किसी incarnation को mention किया गया है, उनके characteristics दिए गए हैं, वो कहाँ पे आएंगे, कब आएंगे, किस टाउन में आएंगे, किस फैमिली में आएंगे, वो कैसे दिखते होंगे, क्या बॉडीली फीचर्स होंगे, क्या उनका रोल क्या होगा, उनका फंक्शंस क्या होंगे, सब बताए गए होंगे स्क्रिप्चर्स में। तो उस स्क्रिप्चर्स की अथॉरिटी के बेसिस पे वी कैन से कोई इनकारनेशन है या नहीं है। An incarnation of the Supreme Lord never declares himself to be an incarnation, but his followers must ascertain who is an incarnation and who is a pretender by referring to authoritative scriptures. तो इनकारनेशन खुद नहीं बोलेगा कि मैं इनकारनेशन हूँ, राइट? जो उनके एसोसिएट्स हैं, उनके पार्षद हैं, उनको स्क्रिप्चर्स के बेसिस पे ये बताना होगा कि ये इनकारनेशन है या प्रिटेंडर है। Any intelligent person can understand the characteristics of a real incarnation by understanding two kinds of features: the principal features, called personal characteristics, and the marginal features, comprising his activities. कि दो तरह की चीज़ों के बेसिस पे हमें पता चल सकता है कि कोई रियल है या इमिटेशन है। एक तो उनके प्रिंसिपल फीचर्स, एक उनके मार्जिनल फीचर्स। प्रिंसिपल फीचर्स तो हो गए जैसे उनके पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स, और मार्जिनल फीचर्स हो गए उनकी एक्टिविटीज़। तो स्क्रिप्चर्स में ये दोनों ही फीचर्स अच्छे से बताए गए हैं कि किसी इनकारनेशन के प्रिंसिपल फीचर्स यानी दिखते कैसे होंगे, पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे होंगे, और उनकी एक्टिविटीज़, उनके मार्जिनल फीचर्स, दोनों चीज़ें बताई जाती हैं स्क्रिप्चर्स में। फॉर एग्जाम्पल, in the beginning of Srimad Bhagavatam, first verse of Srimad Bhagavatam की 1.1.1, the features of an incarnation are nicely described. In that verse, the two terms Param and Satyam, last की लाइन में आता है ना, सत्यम परम धीमहि, तो परम है सुप्रीम, सत्य है ट्रूथ, की एब्सोल्यूट ट्रूथ या सुप्रीम ट्रूथ, ये वर्ड यूज किए गए हैं, ठीक है। लॉर्ड चैतन्य इंडिकेटेड दैट दीज वर्ड्स रिवील कृष्णा's प्रिंसिपल फीचर. The other marginal features are that he taught Vedic knowledge to Brahma, है ना, तेने, so the verse goes, जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञास्वराट् तेने ब्रह्महृदायादिकवये मुह्यन्ति यत्सूरया तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेद सदा निरस्तकुहकं सत्यम परम धीमहि। तो सत्यम परम उनके प्राइमरी फीचर हैं, और तेने ब्रह्मा या आदि कवया, कि उन्होंने नॉलेज दी, वैदिक नॉलेज दी इनटू द हार्ट ऑफ लॉर्ड ब्रह्मा, ये उनका मार्जिनल फीचर है, ये उनकी एक्टिविटी है। इसका मतलब वो एक इनकारनेशन है, दैट ही इज इनकारनेटेड एज अ पुरुष अवतार टू क्रिएट द कॉस्मिक मैनिफेस्टेशन, है ना। तेजो वारी मृदाम यथा विनिमयोत्त यत्र त्रिसर्गा मृषा, की जिन्होंने पूरी ये लेयर्स ऑफ कॉस्मिक मैनिफेस्टेशंस बनाई हैं, राइट, एज पुरुष अवतारास। तो ये उनकी सेकेंडरी फीचर्स हो गए कि पुरुष अवतार की तरह वो सारी कॉस्मिक मैनिफेस्टेशन बनाते हैं और ब्रह्मा को सारी नॉलेज देते हैं। तो ये हो गए उनके मार्जिनल फीचर्स या उनकी एक्टिविटीज, और प्राइमरी फीचर हो गया सत्यम परम। इससे पता चलता है कि कृष्णा एक अवतार है।
These are occasional features manifested for some special purposes. One should be able to understand and distinguish the principal and marginal features of an avatar. No one can declare himself an incarnation without referring to these two features. Intelligent man will not accept anyone as an avatar without studying the principal and marginal features. तो हमें हर एक incarnation की principal और marginal features अच्छे से दिखाई देने चाहिए, समझ आनी चाहिए. अगर principal और marginal features नहीं समझ आ रहे तो we should not accept them as an avatar. जो भी intelligent man है, we should be able to understand their principal and marginal features. So when Sanatana Goswami tried to confirm Lord Chaitanya's personal features, characteristics, principal features as being those of incarnation for this age, Lord Chaitanya himself confirmed the Sanatana's conclusion by saying, "Let us leave aside all these discussions and continue with the description of the Shaktyavesh avatars." तो जब वो उन्होंने कंफर्म करने की कोशिश की चैतन्य महाप्रभु से उनके पर्सनल फीचर्स, तो महाप्रभु ने उनकी बात को थोड़ा साइड में कर दिया कि लेट्स कंटिन्यू, क्योंकि जो वो एक हिडन अवतार हैं तो वो सबके खुल के नहीं बता रहे कि मैं भगवान हूँ, और कोई भी इनकारनेशन खुल के ज़्यादा नहीं बताते. तो इस तरीके से शाक्तवेश अवतार वाली अगली डिस्कशन पे चल पड़े. ओके, so Shaktyavesh avatars we understand little bit better, right? The Lord then pointed out that there is no limit to Shaktyavesh avatars, but that some can be mentioned as examples. तो Shaktyavesh अवतार भी दो तरह के होते हैं, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट. जब लॉर्ड खुद आते हैं तो वो होते हैं साक्षात या डायरेक्ट शाक्तवेश अवतार, डायरेक्ट हो गए या साक्षात हो गए. जब वो किसी लिविंग एंटिटी को या जीवा को एम्पावर करते हैं टू रिप्रेजेंट हिम फॉर अ सर्टेन एक्टिविटी, एक पर्टिकुलर काम करवाने के लिए एक जीवा को एम्पावर करते हैं, तो वो होते हैं आवेश या इनडायरेक्ट इनकारनेशन, शाक्त्यावेश अवतार, आवेश इनकारनेशन. तो इनडायरेक्ट अवतारस के एग्जाम्पल हैं जिसमें उन्होंने जीवा को पावर किया है, एम्पावर किया है. वो हो गए जैसे नारद मुनि, पृथु महाराज, परशुराम या 4 कुमारस. ये सब लोग लिविंग एंटिटीज हैं जिनको स्पेसिफिक पावर्स दी हैं लॉर्ड ने. So when a specific opulence of the Supreme Lord is invested in specific entities, they are called Avesh avatars. तो 4 कुमार्स में क्या ऑपुलेंस दी है भगवान ने? नॉलेज की ऑपुलेंस दी. अपनी कोई ऑपुलेंस किसी जीवा में इतना डाल देना कि वो जीवा एक पर्टिकुलर काम कर पाए. नॉलेज दिया 4 कुमारास को, ठीक है. नारद मुनि को दी है भक्ति या डिवोशनल सर्विस, ताकि वो प्रीचिंग करते हैं. लॉर्ड चैतन्य भी इसी तरीके से डिवोशनल सर्विस करते हैं, बट ही इज द फुल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिवोशनल सर्विस, ठीक है. वो तो डायरेक्ट अवतार है, तो वो तो खुद कृष्णा है. ब्रह्मा जी को ऑपुलेंस दी है क्रिएटिव पावर की. महाराज पृथु को दी थी एडमिनिस्ट्रेटिव पावर की ऑपुलेंस, सो ही कैन मेंटेन द लिविंग एंटिटीज. परशुराम को पावर दी थी फॉर किलिंग द इविल एलिमेंट्स, लाइक क्षत्रियास को मारा था उन्होंने 21 times over, right? The power of killing. As for Vibhuti or special favor of the Supreme Personality of Godhead, in the 10th chapter of Bhagavad Gita, Lord Krishna says that a living entity who is especially powerful or beautiful should be known to be especially favored by the Supreme Lord. तो जब कोई ऑपुलेंस बहुत अच्छे से देते हैं किसी जीवा को, बहुत ही पावरफुल बना दिया, बहुत ब्यूटीफुल बना दिया इस तरह से, तो वो भगवान से आती है डायरेक्ट ऑपुलेंस, जैसे कि भगवद गीता के 10th चैप्टर में बताया गया. पर कई बार भगवान वो ऑपुलेंस देते हैं एक पर्टिकुलर टास्क करवाने के लिए, तो तब वो बन जाते हैं शाक्तवेश अवतार. तो डायरेक्ट या साक्षात शाक्तवेश अवतार के एग्जाम्पल होते हैं शेष इनकारनेशन एंड द अनंत इनकारनेशन. अनंत शेष मतलब अनंत में उन्होंने क्या पावर दी है? फॉर सस्टेनिंग ऑल द प्लैनेट्स. और शेष में क्या पावर दी है? पावर फॉर सर्विंग द सुप्रीम लॉर्ड. तो सारे प्लैनेट्स को सस्टेन करने की पावर दी है और फॉर सर्विंग द सुप्रीम लॉर्ड, सेवा करने की पावर दी है. तो इस तरह से शाक्तवेश अवतार बताए महाप्रभु ने. इसके बाद he began to speak about the age of the supreme lord, कि कितनी एज है उनकी. तो उन्होंने क्या बताया कि सुप्रीम लॉर्ड इज ऑलवेज लाइक अ 16-year-old बॉय, राइट? When he desires to descend to this universe, he first sends his father and mother, who are his devotees, and then he himself appears. All his activities, beginning with the killing of the Putna demon, are displayed in innumerable universes, and there is no limit to them. At every moment, at every second, his manifestations and pastimes are seen in different universes.
लाइक ब्रह्मांड में उनकी एक्टिविटीज चल रही हैं. So these activities are just like the waves of the Ganges river. Just as there is no limit to the flowing of the waves of Ganges, there is no cessation of the various features of the Lord's pastimes. From childhood, he displays many pastimes and ultimately he exhibits the Rasa dance. 16-year boy की फॉर्म में आते हैं वो. मेजॉरिटी ऑफ लाइफ वो 16-year old ही रखते हैं और उनके आने से पहले उनके फादर, मदर और दूसरे ओल्डर एसोसिएट्स एंड पार्षद्स आते हैं जो पहले से आके सीन सेट करते हैं फॉर कृष्णा टू अपीयर. और उनकी जितनी भी लीलाएं हैं वो सारा टाइम चल रही हैं डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सेस. It is said that all the pastimes of Krishna are eternal. This is confirmed in every scripture. Generally, people cannot understand how Krishna performs his pastimes. But Lord Chaitanya clarified that by comparing the performance of his pastimes to the orbit of the sun. तो इन्यूमरेबल पास टाइम चल रहे हैं इन्यूमरेबल यूनिवर्सेस में. एट एवरी सेकेंड डिफरेंट डिफरेंट लीलाज हो रही हैं. पूतना को मारने की लीला कई यूनिवर्सेस में कई बार हो चुकी है, अभी भी हो रही होगी कहीं पे. ठीक है, ये बातें लोगों को समझ नहीं आती, लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने इसको ऑर्बिटिंग ऑफ द सन से कंपेयर किया कि सन ऐसे घूमते जा रहा है ना बार बार, तो इसी तरीके से उनकी भी पास टाइम चलते जा रहे हैं बार बार. According to Vedic calculations, the 24 hours of a day are divided into 16 dandas. The days are again divided into 3600 palas. तो जो वैदिक कैलकुलेशन में टाइम कैसे डिवाइड होता है इंग्लिश कैलकुलेशन के हिसाब से कैसे है, कंपेयर किया दोनों को कि एक दिन में जैसे 24 आवर्स होते हैं, 24 आवर्स इज इक्वल टू 60 दंडास और 3600 पालास. और जब सन स्काई में जाता है तो 60 पालास होते हैं. 60 पालास में वो क्रॉस करता है स्काई को, एंड दैट टाइम कॉन्स्टिट्यूट्स 1 दंडा. तो 8 दंडा मेक्स 1 प्रहर एंड सन राइज एंड सेट्स विद इन 4 प्रहर. जैसे कहते हैं ना एक दिन में 4 प्रहर होते हैं, हर एक प्रहर में 8 दंडास होते हैं और 4 प्रहर का मतलब हो गया अबाउट 32 दंडास. और इस तरह से नाइट भी होती है, 4 प्रहर होते हैं तो वो भी अबाउट 20-30 दंडास हो गए तो 60 दंडास हो. तो इस तरीके से स्काई में सन क्रॉस करता है. एंड जस्ट एज द सन कैन बी सीन इन इट्स मूवमेंट थ्रू 3600 पैलास, ऑल द पास्टाइम्स ऑफ कृष्णा कैन बी सीन इन एनी ऑफ द यूनिवर्सेस. तो जैसे कि सन चलते जा रहा है, उसकी मूवमेंट हो रही है धीरे धीरे, उसी तरीके से कृष्णा के भी पास्टाइम्स चलते जा रहे हैं. तो इसमें से बस ये याद रख सकते हैं कि एक दिन में 4 प्रहर होते हैं और हर प्रहर में अबाउट 8 दंडास होते हैं, और रात में भी 4 प्रहर होते हैं तो टोटल 8 प्रहर हो गए और हर प्रहर में अबाउट 8 दंडास हो गए. अबाउट 60 दंडास होते हैं एक दिन में. और जब सन क्रॉस करता है स्काई को तो अबाउट उसको 3600 पालास लगते हैं क्रॉस करने में, या 60 या यू कैन से हाँ 3600 पालास लगता है. So this is how our one day is divided. Lord Krishna remains in this universe for only 125 years, but all the pastimes of that period are exhibited in each and every universe. तो 125 years के लिए रहे इस यूनिवर्स में, और यही 125 years जैसे डिफरेंट यूनिवर्सेस में हो रहे हैं यही pastimes. These pastimes include his appearance, the activities of his boyhood and youth, and then his later pastimes including those at Dwarka. All these pastimes are present in one or another of the myriad universes at any given time. They are called eternal. ये eternal इसलिए क्योंकि हमेशा चलते जा रहे हैं, कहीं ना कहीं किसी न किसी यूनिवर्स में ये पास टाइम अभी हो रहा है, और ये सब पास टाइम होते ही जा रहे हैं, इसलिए दे आर इटर्नल. जस्ट एज द सन इज इटर्नली राइजिंग एंड इटर्नली एग्जिस्टिंग, राइट. अगर अभी हमारे पास रात है, हमें सन नहीं दिख रहा, लेकिन वो कहीं और है, इसी तरीके से अगर हमें दिख रहा है और कहीं और नहीं दिख रहा तो भी वो है, वो हमेशा ही एग्जिस्ट कर रहा है, कहीं ना कहीं तो वो है ही है सन. इसी तरीके से कृष्णा के पास में अगर अभी हमें नहीं भी दिख रहे, नहीं मैनिफेस्ट हो रहे, तो कहीं ना कहीं तो हो ही रहे हैं मैनिफेस्ट. तो इस तरह से अंडरस्टैंड कर सकते हैं कृष्णा के पास टाइम्स की एटर्नैलिटी को. As stated earlier, Krishna's abode is the supreme planet known as Golok Vrindavan, and by his will
this Golok Vrindavan is manifested in this universe and other universes as well, right? तो गोलोक वृंदावन द सुप्रीम प्लैनेट है. स्पिरिचुअल स्काई में भी जो सबसे टॉप मोस्ट प्लैनेट है दैट इज गोलोक वृंदावन. और स्पिरिचुअल स्काई के भी जो गोलोक वृंदावन होता है या द्वारकापुरी, मथुरापुरी या वैकुंठा प्लैनेट्स के कुछ थोड़ा सा पोर्शन is represented here in this material world also. We get a little window, a little sneak peek into the spiritual world through those windows. What are those windows? They are the dham, right? तो जैसे कि गोलोक धाम is represented in this universe by the भौम वृंदावन, जो हमारी इस भूमि पे वृंदावन है, उसमें से हम थोड़ा स्नीक पीक ले सकते हैं टू गोलोक वृंदावन. लाइक दैट in this universe and similarly in other universes also Golok Vrindavan is manifested. Like Krishna's name, fame and everything else directly connected to him, Golok Vrindavan is absolutely and therefore is absolute and is therefore equal to him. तो हर चीज कृष्णा की एब्सोल्यूट है, हर चीज कृष्णा की कंप्लीट होल है, उसमें कोई कमी नहीं है. उनकी नेम में, उनकी सभी ऑपुलेंसेस में, फेम में, उनके धाम में, हर चीज कंप्लीट होल है. इसलिए जब हम नाम लेते हैं उनका तो इट इज इक्वल टू बीइंग इन एसोसिएशन विद द लॉर्ड. अगर हम धाम जाते हैं इट इज इक्वल टू बीइंग इन एसोसिएशन विद द लॉर्ड. तो उनमें और उनके नाम में और उनके धाम में और उनकी एक्टिविटीज में और उनके कथाओं में, पास टाइम्स में कोई फर्क नहीं है. They're all absolute and they're all equal to him. Thus the Lord is always in his supreme abode Golok Vrindavan, and by his supreme will his activities are also manifested at particular places in innumerable universes, and whenever and wherever Krishna appears he displays his six opulences. तो इतने सारे मटेरियल यूनिवर्सेस हैं, हर यूनिवर्स में उनकी धाम रिप्रेजेंटेड है और हर एक किसी न किसी जगह पे इस टाइम पे वो पास टाइम चल रहा है उस धाम में और उनके पूरी ऑपुलेंसेस दिखाई दे रही हैं. कृष्णा अपने पास टाइम्स कर रहे हैं विद ऑल हिज ऑपुलेंसेस at different times in different universes. So this is the concept of the avtaras. So we learnt about the three Purush avtaras, the three Guna avtaras, the Shaktavish avtaras, the Leela avatars, the Swamsha expansion of the Lord, right? The मनवंतर अवतार्स और जो लास्ट में पढ़ी थी वो थी युग अवतार्स, एंड द शाक्तवेश अवतार्स. तो ये सारे हमने इनकारनेशंस पढ़ी. हर एक का अपना अपना रोल है, बहुत सारे हैं इनकारनेशंस और इनको समझना काफ़ी मुश्किल है. बट द मेन थिंग टू अंडरस्टैंड इज कि ये सारे एक्सपेंशंस कृष्णा से आ रहे हैं. Krishna is the original source of these incarnations and they each come for a particular purpose, and sometimes one person can be two different types of incarnation में हो सकता है. जैसे ब्रह्मा जी शाक्तवेश भी हो सकते हैं और गुणावतार भी हो सकते हैं. और थोड़े थोड़े एग्जाम्पल्स हर टाइप का अगर हम याद रख सकते हैं तो दैट विल बी गुड टू अंडरस्टैंड. So this is my understanding from chapter 8 of Teachings of Lord Chaitanya. This chapter was called the Avtaras. The next chapter that we will read, chapter 9, is called the Opulences of Krishna. So I know that this is very high level philosophy. Remember, this is the teachings Lord Chaitanya gave to Sanatan Goswami. So of course it is not easy to understand, and Sanatan Goswami's intelligence and Mahaprabhu, their discussions, their intelligence is way above ours, and so whatever limited knowledge we can get out of this is fine. It is very hard to retain these facts and figures and names, but the main point is to get the sense ultimately and to understand that this book, what this book is about, what teachings of Chaitanya Mahaprabhu were given to Sanatan Goswami, what the teachings included, ताकि जब भी कोई बात करे कि इस तरह से महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी को 2 महीने तक उपदेश दिया था, तो हमें याद आएगा कि ओके क्या उपदेश दिया था. उन्होंने अवतार्स के बारे में बताया था, कृष्णा की ऑपुलेंसेस के बारे में बताया था, कृष्णा की एनर्जीज के बारे में बताया था. ऐसे याद आएगा इवन इफ वी डोंट रिमेंबर द निटी-ग्रिटीज और द डिटेल्स ऑफ दीज डिस्कशंस. एंड कभी कोई कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक आएगा भागवतम में या हमारी किसी डिस्कशंस में ड्यूरिंग आवर क्लासेस एंड ऑल,
तो हमें पता होगा कि कहाँ पे हम खोल के देख सकते हैं इसके बारे में. So the point is not to commit to memory all these things. The point is to just understand the essence and the gist of this, and to just show our effort in trying to understand Krishna and his energies and expansions in this material world and spiritual world more and more. I'll stop here. Thank you everybody for listening. Vancha kaltarubhyascha kripa sindhubhya eva cha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namah. Srila Sanatan Goswami ki jai. Lord Chaitanya Mahaprabhu ki jai. Thank you. God Pramanande Hari Hari Bol.